Our question is, enthalpy of sublimation of iodine is 24 calorie gram inverse, okay, at 200 degrees Celsius. If specific heat of iodine and iodine solid and iodine vapor are 0.055 and 0.031 respectively, then enthalpy of sublimation of iodine at 250 degrees Celsius in calorie gram inverse is, okay. So here first we know about that what is enthalpy of sublimation. Amount of energy is required to change the substance from solid phase to vapor phase. This is called sublimation, okay. So here consider the reaction I2 solid convert into I2 gaseous, okay. We can calculate the enthalpy of sublimation of iodine by using the formula here. The formula for this is delta H equal to delta Cp into T2 minus T1, okay, where delta Cp is specific heat capacity, where delta Cp is specific heat and T2 is final temperature and T1 is initial temperature, okay. We can calculate the change in specific, this first we have to calculate this change in specific heat capacity, as we have been the specific heat capacity of I2 solid and I2 vapor, okay. So specific heat capacity are given is for I2 solid is this 0.055 and I2 vapor is 0.031, okay. This is, now let us calculate delta C equal to change in specific heat capacity is as Cp of product minus Cp of reactant, okay. So here we are given product is I2 gas whose Cp is 0.031 minus reactant specific heat capacity is 0.055. On solving this, it is equal to minus 0.024 calorie per gram, okay. Now temperature here T1 is also given, which is equal to T1 equal to 200 degrees Celsius, okay. So convert into Kelvin, 200 plus 273, which is equal to 473 Kelvin, okay. Now change in temperature is equal to, now here T2 is given, which is 250 degrees Celsius, which is equal to 200 plus 250. On solving this, sorry, here 273. 273 plus 250 equal to 523 Kelvin, okay. Now delta T equal to T2 523 minus 473. On solving this, it is equal to 50 Kelvin, okay. Now we know that delta H1 equal to given is, which is 24. Delta H1 equal to 24. Now change in enthalpy equal to H2 minus H1. So here H1 is given, so delta H equal to H2 minus 24, okay. Now substitute this value in this formula, delta H equal to delta Cp T2 minus T1. On in this formula substitute all the values, okay. So delta H equal to delta Cp equal to minus 0.024 into 50 and delta H equal to
H2 minus 24 which is equal to minus 0.024 into 50. On solving this, it is equal to minus 1.2. So H2 minus, here H2 minus 24, H2 equal to 1.2 plus 24. On solving this, it is equal to 22.8, here minus, okay, 22.8 calorie gram inverse. Okay, hence the enthalpy of sublimation of iodine at 250 degrees Celsius is 22.8 calorie gram inverse. So option 2 is the correct answer of this question. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कार्बन ग्रेफाइट को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO गैस बनता है, और जो इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो है x किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमें दी हुई है कि कार्बन ग्रेफाइट के साथ अगर ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज है वो है y किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन के दौरान z किलो जूल्स पर मोल एनर्जी का चेंज आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फाइंड आउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक रिलेशंस इज करेक्ट। यानी कि ऑप्शंस को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन तीनों इक्वेशंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखो, अगर मेरे को थर्ड इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन कैसे बन सकती है? फर्स्ट और सेकंड से किसी तरह से थर्ड इक्वेशन बन सकती है। हमारी थर्ड इक्वेशन में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिएक्ट करवाया गया है हाफ मोल ऑक्सीजन गैस से, और हमें क्या मिला है? CO2 गैस मिला है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? किस तरफ है? हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ, और हमें चाहिए किस तरफ? रिएक्टेंट्स की तरफ। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को मेरे को उल्टा करके लिखना पड़ेगा। जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? -x। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड किस तरफ है? प्रोडक्ट्स की साइड, और हमें अपनी इक्वेशन जो चाहिए उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स की तरफ है, तो CO गैस कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। ठीक है, और इस रिएक्शन के दौरान एंथैल्पी चेंज कितना है? y किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरी नेट इक्वेशन क्या बनेगी? CO गैस प्लस कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस CO2 गैस। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन ग्रेफाइट घटा, हाफ O2 से यहाँ पर हाफ O2 रह जाएगा, और तुम्हारी नेट इक्वेशन जो आ गई वो थर्ड आ गई, थर्ड वाली इक्वेशन आ गई ना, गिव्स CO2 गैस। ये हो गया Z। तो Z कैसे आई? जब मैंने y माइनस x किया तो हमें वैल्यू मिली Z की। एंथैल्पी की टर्म्स में y माइनस x किया तो Z की वैल्यू मिली, यानी कि x क्या है? हमारा रिलेशन x, y और z में क्या रिलेशन आया? x इज इक्वल टू y माइनस z, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है ना। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। The question is given कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग CO2। इसका जो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल। द सेकेंड रिएक्शन इज H2 गैस गिविंग हाफ O2
गिविंग H2 गैस प्लस हाफ O2 गिविंग H2O लिक्विड। ठीक है, इसका जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है वो है -285.8 किलो जूल पर मोल। और जो थर्ड रिएक्शन है वो है CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड गिविंग CH4 गैस प्लस में 2O2 गैस। ठीक है, और इसका जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन वो है 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें जो गिवन रिएक्शन इसका डेल्टा H फाइंड करना है एंड द रिएक्शन इज कार्बन ग्रेफाइट प्लस में 2H2 गिविंग CH4 गैस। ओके, तो हम लोग जो इक्वेशन, ये हमारे पास में 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, जो इक्वेशन 1 2 3 इसका हम लोगों को जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोगों को मैनिपुलेट करके ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में क्या करेंगे। हम लोग ये इक्वेशन चाहिए हम लोगों को, तो सी ग्रेफाइट इधर हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इधर भी ये इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को ऐड करते हैं ना। हम लोगों को इधर क्या चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए 2H2। ठीक है, तो हमारे पास में H2 किस वाली साइड, H2 कहाँ है हमारे पास में, वो है सेकेंड रिएक्शन में राइट हैंड साइड पे, पर यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ H2 है और इसका जो कोफिशिएंट है जो गिवन रिएक्शन है उसमें कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, तो हमारे पास में क्या आएगा 2H2 गैस प्लस में O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड। ठीक है, और इसका जो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ -285.8 किलो जूल पर मोल। ओके, और गिविंग CH4। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा सी ग्रेफाइट। ठीक है, प्लस में O2 गैस प्लस में 2H2 गैस प्लस में O2 गैस प्लस में CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड। ठीक है, ये क्या दे रहा है हम लोगों को, CO2 गैस प्लस में 2H2O लिक्विड। ठीक है, और फिर प्लस में थर्ड रिएक्शन से क्या दे रहा है, CH4 गैस प्लस में 2O2 गैस। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो कैंसिल होने कैंसिल कर देते हैं, H2 कैंसिल हो गया। ठीक है, O2 2 टाइम्स है, ये भी यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास में क्या बचा, CO2 भी यहाँ से कैंसिल हो गया। तो जो हमारे पास में रिक्वायर्ड इक्वेशन आई, ठीक है, वो क्या है हमारे पास में, सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस गिविंग CH4 गैस। ठीक है, अब इसके लिए जो हमारा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होगा ये क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 प्लस में डेल्टा H3। ठीक है, डेल्टा H1 कितना है हमारे पास में, -393.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H2 कितना है, -285.8 प्लस में डेल्टा H3 कितना है, 890.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास में आएगा माइनस में 965.1 प्लस 890.3। ठीक है, तो जब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा -74.8 किलो जूल पर मोल। तो जो हमारे पास में गिवन रिएक्शन है इसका डेल्टा H कितना आ गया, -74.8 किलो जूल पर मोल। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू।